हाँ सर, आवाज आ रही है अब मेरी? आ रही है, अब आ रही है। ओके सर, फाइन। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर सर ऑनलाइन होने वाले हैं, अभी आए थे। मैंने कहा सर 9:40 का टाइम था, सर हम्म। 9:35 पे ही ज्वाइन थे। अच्छा। मैक्सिमम ऑफ यू आर ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट क्लास। आज जो है हम लोग ऑफ एलिमेंट्स का ऑक्सीजन फैमिली जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था, उससे आगे का पोर्शन बेटा लेना शुरू करें। प्रतीक सर, इज दैट क्लियर? यस सर, आवाज क्लियर। क्लियर आ रही हाँ, क्लियर है सर। है? फाइन, बहुत अच्छी बात। तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और जहां हम लोगों ने खत्म किया था उससे आगे बेटे हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि आप समय से ज्वाइन किया करें। या तो बेटा हम लोग जो शुरू करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, फर्स्ट विल गो फॉर द preparation of oxygen. How the oxygen is prepared? We prepare the oxygen at the different levels. First of all, we'll take the case in the laboratory. In the case of the laboratory, substances which are rich in oxygen, or in the cases where the oxygen is loosely bonded with them, such kind of the compounds are selected and they are subjected to decomposition. They are subjected to decomposition. So one such example is your potassium chlorate. So in the laboratory, if you take potassium chlorate and decompose it in the presence of certain catalysts like manganese dioxide, sometimes even heat is sufficient enough to break these compounds, you may get the so you can see this first equation. The potassium chlorate is heated and it decomposes to give you potassium chloride and oxygen. Is that clear? If the concept is clear, I want you to give the response only with the help of your comments. Yeah, fine. Very good. I got the response from one of you. So that is clear to you. Second method for the preparation of the oxygen is the thermal decomposition. There is a good difference between the method that we are using in the laboratory and the thermal decomposition. What that difference is, in the case of laboratory,
when you are preparing the oxygen, you are using a catalyst. While in the case of the thermal decomposition, just with the help of the heat only, the substance get decomposed. These are the substances that you are taking for carrying out the thermal decomposition reaction. You are taking some of the elements oxides which are found lower in the reactivity series. क्या ध्यान रखना है? These are the metal oxides of the elements which are found in the lower portion of the reactivity series. So first example is your silver oxide. Second one is Pb3O4. Next one is mercuric oxide. Next one is lead peroxide. So these substances, when they are subjected to the heat, what will happen? They will give you the metal and the oxygen. Silver oxide will give you silver and oxygen. Pb3O4. This oxide is ठीक है. Next one is when you heat the mercuric oxide, you get the mercury as liquid and the oxygen gas. When you heat the PbO2, that is lead peroxide, you will again get the PbO and oxygen. Now, if you will see two of the reactions, Pb3O4 and PbO2, in these both cases, let's oxide more unstable than PbO, तो आप क्या जवाब देंगे? You may write down your answer in the comment box. जो चैट हम यूज करते हैं बेटे, उस पे आप अपना जवाब दे सकते हैं. है किसी के पास बेटा? यस, ऑक्सीडेशन नंबर. निधि, थैंक यू, बहुत अच्छी बात. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अगर आप PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम Pb+4. Pb is in the +4 oxidation state, while in the PbO the oxidation state is +2. तो रीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओके. व्हाट इज the exact word we use for these difference of the oxidation states for stability? Yes, Aarti, that is due to inert pair effect. एक क्वेश्चन बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल होता ही होता. तो ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना ही चाहिए कि कैसा होगा, कहां ये रीजन आपको देखना है. क्लियर हुई बात? बहुत अच्छी बात. नाउ नेक्स्ट मेथड इज by the decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide can be readily decomposed to give you the water and oxygen. ठीक है, अपने आप टूटता है और आसानी से ये पानी और ऑक्सीजन बनाता है. तो अभी तक 3 मेथड्स हो गए. इन द लेबोरेटरी यू कैन मेक, by thermal decomposition reaction you can make, and by the decomposition of hydrogen peroxide you can get the oxygen. Next thing is, how do we exactly obtain
the oxygen in the industry. So it is from the air. The richest source in the nature is oxygen. Of oxygen is your air. सबसे ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन वहां से मिल सकती है. Now how we get it? Thing is, plenty of the gases which are present over there. What we first do is we remove the carbon dioxide present over there and the water vapors. ये दो चीजों को हम लोग रिमूव कर देते हैं. और उसके बाद जो है, जो बाकी गैसेस बची, जो मेन दो कॉन्स्टिट्यूएंट बचे एयर में, कौन कौन से बच गए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. These two components are subjected to fractional distillation. ये दोनों को हम फ्रैक्शनली डिस्टिल करते हैं और पहले आपका जो है ऑक्सीजन अलग हो जाता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन. क्लियर हुई बात? यस या नो में बेटा अपना कमेंट लिखकर दे दीजिए मुझे. आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? फाइन, थैंक यू. बस दो जवाब काफी हैं मेरे लिए कि आपको बात समझ में आ गई. नाउ वी विल गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. What are the different properties of oxygen? Amongst these properties, few the important ones are selected over here. That oxygen is found in the form of isotopes. Oxygen have different isotopes. Now they are known as oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18. Three isotopes are there. Now the question is, what are isotopes? You can give your answer in the comment box. आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसका मुझे आंसर चाहिए बच्चों. Yes, you have said different atomic number, same atomic mass. काजल कुमारी has said the mass number is different. तो दोनों में से सही कौन सा है? एक ने कहा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दूसरे ने कहा मास नंबर डिफरेंट है. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट. एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं. वी आर सेइंग ऑक्सीजन इज हैविंग 3 isotopes, oxygen 16, 17, 18. Yes, atomic number should be same. क्योंकि एक ही एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है? एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट. ठीक है? सो दिस थिंग वी मस्ट रिमेंबर. Oxygen is normally found in the form of a molecule, that is O2. ठीक है? और it is paramagnetic in nature. क्या है? It is paramagnetic in nature in spite of the fact that it is having even a number of electrons. हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर होते हैं तो पेयरिंग के चांसेस होते हैं, और इसलिए पहली नजर में ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा. लेकिन ऐसा होने के बाद भी ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है. क्यों है? क्लास 11th में पढ़ा है. यस, निधि has said it contains unpaired electrons. But how come the O2 molecule is having unpaired electrons? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? है किसी के पास बेटा कोई जवाब? अगर है तो प्लीज. यस, द लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स go into separate degenerate orbitals. This is as per MO theory, molecular orbital theory के अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक. बहुत अच्छी बात, वेरी गुड. अब आगे हम बात करें. डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट
gold, platinum, and some noble gases. Noble gases मतलब we are talking about the 18th ग्रुप एलिमेंट्स, उनके साथ कंबाइन नहीं करता है, और इन दो एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन नहीं करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ रिएक्शंस को हम देखेंगे, और ये रिएक्शंस आपसे कंप्लीट करने के लिए बेटे आती हैं। In the case of inorganic chemistry, do remember where you are writing the equations. These equations must be balanced. Organic chemistry, you can take the liberty that you are not balancing the equations, but as far as inorganic chemistry is concerned, the reactions must be balanced. तो पहला क्या है, कैल्शियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दो कैल्शियम के एटम ले लिए, O2 के साथ कंबाइन किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3। phosphorus combines with oxygen to form phosphorus oxide, that is phosphorus pentaoxide इसको कहेंगे। carbon combines with oxygen to form the carbon dioxide possible, carbon monoxide possible, but this will be decided on the basis of then what ratio we are having the carbon and the oxygen, ये किस रेशियो में हमारे पास प्रेजेंट हैं। क्लियर हो रही बात? अगर ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन जो है आप यूज करेंगे कुछ और रिएक्शंस के लिए, जैसे जिंक सल्फाइड के साथ आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन वी हैव रेड, जो अपने सल्फाइड ओर्स होते हैं उनका रोस्टिंग आप करते हो, क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो वो एयर की प्रेजेंस में होता है, तो सल्फाइड्स और अपने क्या होता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सल्फर जो है उसमें से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सेम वे how the hydrocarbons react with the oxygen, that can also be asked. Now there also, depending upon the supply of the oxygen, your final product will be decided. Methane combines with insufficient amount of the oxygen, that is shown here in the equation. It will give you carbon monoxide and water. But in case there is a sufficient amount of oxygen, in place of carbon monoxide, what you will get is carbon dioxide. In some other cases also, we use the oxygen. In the case of the preparation of sulfuric acid, that will later come in the chapter, this equation will be repeated once more. Sulfur dioxide combines with oxygen to gives you sulfur trioxide in the presence of vanadium pentaoxide. This reaction we have already seen in one of the chapters, surface chemistry. Can anyone tell me ये किस चीज का एग्जाम्पल था? कोई बताएगा बेटा? सरफेस केमिस्ट्री में ये इक्वेशन किस हेडिंग में या किस चीज में हमने पढ़ा था, और ये किस चीज का एग्जाम्पल था? रिकॉल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, गैसियस फिजिकल फॉर्म में हैं, जबकि वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड फेज में होता है। इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। Next reaction is hydrochloric acid या hydrogen chloride gas combines with oxygen to form the copper chloride. This will give you chlorine gas and the water. This reaction is again an example of the bleaching action.
ठीक है, अब देखते हैं बेटा, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसको आपको टेस्ट कर रहे हैं, छोटा सा है। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें से ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, और जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे इसका जवाब दे दीजिए। प्लैटिनम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बस 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 बस, बहुत अच्छी बात, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, गुड, प्लैटिनम। We have seen two of the elements in the previous slides where we have said the inert gases, gold and the platinum, do not react with the oxygen directly. बहुत अच्छी बात है। Second one, complete the following reactions. C2H4 combines with oxygen, क्या बनेगा? Okay, निधि acid, carbon dioxide and water, बहुत अच्छी बात। How much carbon dioxide? How many moles? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? बैलेंस करके देखिए, पहले आप बैलेंस करके लिख लीजिए तब मुझे। वेरी गुड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, वाटर ऑल्सो 2, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होगा? फाइन, 2, बहुत अच्छी बात है। नाउ गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन, एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव यू, क्या बनेगा? इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताइए। आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो रिएक्टेंट्स के वो ऑलरेडी हैं। फाइन, अंबिका रावत, अंबालिका रावत, सॉरी, निधि, you also gave me the correct answer. The answer is 2Al2O3. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं बच्चे, दैट इज ऑक्साइड्स, दैट इज ऑक्साइड्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द ऑक्साइड्स आर? अच्छा, ठीक है। नाउ द ऑक्साइड्स वेरी वाइडली इन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज, on the basis of these properties only oxides can be simple oxides, एंड उसके बाद जो है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड्स है। व्हाट आर द सिंपल ऑक्साइड्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3। व्हाट आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स? Pb3O4 एंड Fe3O4। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई वी आर कॉलिंग सम ऑफ देम एज सिंपल ऑक्साइड्स व्हाइल द अदर्स वी आर कॉलिंग देम एज द मिक्स्ड ऑक्साइड्स? ऐसा क्यों है कि हम कुछ को है जो है सिंपल ऑक्साइड्स कह रहे हैं और दूसरों को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड्स कह रहे हैं। सिंपल ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -2। कैलकुलेट करके देख लीजिए। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2 रखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? -2। इसी तरीके से Al2O3 में अगर आप रखेंगे एल्यूमिनियम इज +3, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? -2। क्लियर है बात?
बेटे बात क्लियर है? मैं यस या नो के फॉर्म में आपसे सुनना चाह रहा हूँ। बच्चों का रिस्पॉन्स क्या केवल चैट चैट के थ्रू आता है क्या आपके पास? हाँ सर। यादव जी, बच्चों हाँ का सर। रिस्पॉन्स केवल चैट के थ्रू आता सर आंसर जो है वो है? चैट के थ्रू मांगते हैं, लेकिन उनके माइक में कोई सर रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, आपकी आवाज। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? सर हाँ, मेरी क्लास में सर टोटल बच्चे 44 हैं, और 44 यहाँ पर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो 50 से ज्यादा हैं, 52 हैं शायद। ये कौन से बच्चे हैं एक्स्ट्रा? हाँ, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें केंद्रीय विद्यालय रायवाला के भी बच्चे हैं सर साथ में। अच्छा अच्छा, एक हाँ, सेकंड। वहां पे जो पीजीडी केमिस्ट्री है शायद वो लीव पर है। अच्छा तो हाँ, तो वहाँ जो वाइस प्रिंसिपल है उन्होंने कहा था कि आप सर क्लास ले रहे हैं तो मेरे बच्चों को भी पढ़ा दीजिए, तो मैं उनको भी इसी समय लेता हूँ और साथ में लेता हूँ। अच्छा, तो फिर तो जी सर। वहाँ के बहुत कम बच्चे हैं, इसका मतलब आपके पास, अगर वहाँ के बच्चे भी जी जुड़े हैं सर। तो। अगर सर रायवाला के टोटल बच्चे हैं, हाँ, टोटल दोनों स्कूल्स के बच्चे मिला के हैं 92, और इस समय जो प्रेजेंट है दैट इज 56। नहीं, हमारा पार्टिसिपेंट तो इंक्लूडिंग मी एंड यू, दिस इज 50 और हाँ हाँ, 51। और इसमें शायद सुधा मैडम भी हैं, तो 53 हो जाते हैं सर। अच्छा, जी सर। रायवाला के बच्चे हैं, लेकिन रायवाला के तो फिर बहुत कम पोर रिस्पांस है, तो रोज ऐसा ही रिस्पांस रहता है फिर रायवाला से? सर रायवाला का टाइम टेबल में के बारे में उनको थोड़ा सा कम्युनिकेट किया गया था, तो उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम आपके पैरेलल अपने बच्चों को क्लासेस दे सकें। अच्छा, तो कब से रायवाला के बच्चे आपको ज्वाइन कर रहे हैं? सर मुझे कम से कम 3 हफ्ते हो गए। तो 3 हफ्ते में टाइम टेबल नहीं बन पाया उनका? अब सर ठीक है, मैं रायवाला बात करता हूँ अभी। इफ इट इज कंबाइंड क्लास रायवाला, देन इट इज वेरी पुअर। हाँ, और अगर किसी के दिन जैसे ये बच्चों की बात है तो माना वहां से मेरे पास रिस्पांस कई बार सुबह आ जाता है कि सर हमारी दूसरी क्लास है, तो उस केस में इसी क्लास को मैं उनके लिए अलग से शाम को लेता हूँ। अलग से लेते हैं? जी बिल्कुल आप लेता हूँ। कितनी क्लासेस पढ़ रही होंगी इस टाइम, अगर आप अलग से टाइम टेबल उनको दे सकते हैं अपने बच्चों के अलावा? जी लेकिन सर। 90 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो भी मुश्किल है आपके लिए। हाँ हाँ तो आपके पास कितनी क्लासेस होती हैं इस टाइम अभी? सर। 12 होगा। सर मैक्सिमम जो एज पर टाइम टेबल होंगी वो 3 क्लासेस चलेंगी। हाँ, तो आप एक क्लास 12 के कम से कम वहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अलग जी टाइम जी को जी, सेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक उसकी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, देखते हैं सर कितना जल्दी वो कर देते हैं। I'll write और it off उसके right. बाद जी जी, This is good. I mean, 3 week time is, it should be done within 1-2 days. हाँ ज्यादा बड़ा टाइम काम तो नहीं है सर। I'll just talk to the principal right now. ठीक है Okay. सर। So, I would like to talk some of the children of your school. Sure, sir. This Apurva Dahiya is of your school, no? हाँ, अपूर्वा इज फ्रॉम माय स्कूल ओनली सर। Apurva, She appeared for this compartment examination and she has passed recently. Okay. Joined 2 days back. Okay. So, she can hear me, or Aditi Mishra? हाँ, Aditi will be there. Yes, Aditi. Aditi, come online. Good morning, sir. Yeah, very good. Good morning, Aditi. How are you? Sir, I'm good. And what are you doing at home right now, other than this academic work? Yes, Aditi. Yes, sir. Sir, your voice is What not do you- clear. I'm asking, what are you doing at home other than this your academic classes? Because the 3 to 4 class per day you have, rest of time you have at home. So, how is your time passing on? सर कुछ टाइम तो पढ़ाई के लिए, Hmm. और बाकी टाइम जो अपना काम है वो सब। किस तरह का काम? कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन किया है, कोई और ऑनलाइन क्लासेस? नो सर। मदर की हेल्प करती हैं, क्या करती हैं फिर, कैसे? अच्छा, कितनी क्लासेस होती हैं आपके पर डे स्कूल की?
यस आदिति, हेलो, बोलो यस बेटा। सर। आपकी कितनी क्लासेस होती हैं पर डे स्कूल की, ऑनलाइन क्लासेस? सर टाइम टेबल के हिसाब से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सुबह इंग्लिश की क्लास होती है। नहीं, और पर डे कितनी क्लासेस होती हैं, मतलब 2 3 4 कितनी होती हैं? सर 3 क्लासेस। 3 क्लासेस होती हैं। अच्छा, सभी बच्चे अटेंड करते हैं आपकी क्लास के? आपको तो दिखता होगा ना कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? यस सर, मोस्टली सब करते हैं। उसमें सब करते हैं तो ये इस तरह की क्लासेस का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है कि अगर मतलब ये चूंकि अभी पता नहीं, हो सकता है 1 2 महीना और भी चल सकता है, तो कितनी इफेक्टिव हो रही है आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? सर गूगल मीट पे क्लासेस ठीक है, लेकिन अगर कभी जैसे कनेक्टिविटी इशू इशू होता है, नेटवर्क नहीं आता, उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो जो ये सर अभी पढ़ाते हैं, क्या उसको आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में शेयर भी हो जाती है? यस सर। ओके, गुड। तो फिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, अगर आपकी वीडियो के फॉर्म में शेयर होती है तो आप हाँ जी, जब यस भी सर। आपके पास नेट कनेक्शन ठीक से हो देख सकते हैं। कुछ कुछ असाइनमेंट भी मिलता है थोड़ा कुछ कभी कभी, या कुछ कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं करके? यस सर, हमारा चैप्टर के बाद टेस्ट भी होता है, तो अच्छा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा रहता है जब टेस्ट भी होता है तो। ओके। आ, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका कुछ यादव जी कोई टेस्ट वगैरह भी सर लेते अब हैं? तक 3 टेस्ट यस हो सर। चुके हैं सर। अच्छा अच्छा, किस फॉर्म में लिया है? सर ये गूगल फॉर्म्स के फॉर्म में इन बच्चों को पोस्ट किया था और उसके मार्क्स हैं हमारे पास। तो और टीचर भी ऐसा करते होंगे आपके स्कूल में? जी बिल्कुल सर। ठीक ठीक, गुड गुड। That is why what I'm asking, मतलब some test or meaning of test or assignment they should be given and they should be evaluated whether in the Google जी form or the small question, because lengthy questions we cannot give right now. जी जी। And moreover in your chemistry subject, we have very little questions which are lengthy. Otherwise, normally questions are of 1 marks only. हाँ सर, है ना? 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है आरती, यू एंजॉय, और अपने सभी दोस्तों को बोलो आराम से रहें, थोड़ा जो सेफ्टी तरीके हैं गवर्नमेंट के उसका ध्यान रखें। ठीक है, यस सर। ओके, गुड यस लक। सर। ओके, फाइन। थैंक यू सर। Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो। हाँ बेटा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास को। जो ऑक्साइड्स वाला पोर्शन था हमारा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल ऑक्साइड्स के केस में आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 रहता है, लेकिन जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एज ए फ्रैक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एज ए फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, Pb3O4 में कैलकुलेट करके देखिए, अगर Pb को अगर 2 भी रखोगे तो 6/4, 2 3 का 6 हो जाएगा, 6/4 करोगे तो क्या इतना आ जाएगा? 3/2 आता है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि फ्रैक्शनल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है सिंपल ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक, इनपुट एंड ऑन द एम्फोटेरिक कैरेक्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स? क्या है? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, से कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर, ठीक है, क्लोरिक ऑक्साइड इज देयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज देयर। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा कि ये जब पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं तो कोई ना कोई एसिड बनाते हैं। क्या करते हैं? ये कोई ना कोई एसिड बनाते हैं, तो इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे? दे आर एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सम मेटल्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है
वो क्या होगा, वहां पर उनकी जो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे बेटा, वो एसिडिक होते हैं। इसलिए इसका रीजन आपको जानना होगा। रीजन क्या होता है, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। जो आयन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपको ध्यान हो, लुई एसिड्स और लुई बेसिस, तो लुई एसिड्स क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब प्लस चार्ज या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। बात क्लियर है? मैंने पूछा बात क्लियर है बेटा? मुझे आंसर चाहिए बेटा, कहाँ गायब हो गए? ऑनलाइन तो 42 दिख रहे हैं। यस सर। हायर, हाँ बेटा, ये या मुंह से बोल दीजिए, जैसे भी कर दीजिए, बताएं जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए ऐसा है। एक रिएक्शन भी आपके सामने है कि कोई एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया और पानी के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसी तरीके से Mn2O7, CrO3, V2O5, इनकी पानी के साथ रिएक्शन करके देखनी है, और पानी के साथ रिएक्शन करके देखनी है और पता करना है कि कौन सा एसिड बनता होगा। हेलो, हाँ रमाकांत जी, केवी ऋषिकेश से बोल रहा हूँ। ये स्कूल में आने वाले थे आप? हाँ ठीक है। बेटा सडनली इसको ऑफ करेंगे क्योंकि आपकी अगली क्लास है, आपके अगले टीचर वेट कर रहे होंगे। रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड डे बेटा। बोलो। सर मैं रायवाला की स्टूडेंट हूँ, और सर मैं बोल रही थी कि जो हमारे टाइम टेबल है सर वो सेट हो रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बेटा ये इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मेरे पास नहीं थी। अभी जैसे ही सर ने बोला था ना, यस सर। अभी जैसे उसने बोला था, आपको तुरंत जवाब दे देना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा रहता। एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं। वी विल कम्युनिकेट टू द डीसी सर, ठीक है? ओके सर। हम डीसी सर को बेटे कम्युनिकेट कर देंगे।